हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Composition of the atmosphere and the structure. There is a most important chapter, and the important here is the first point is a composition of an atmosphere. There is a most important here. The atmosphere is made up of different types of gases, waters, vapors, and dust particles. There is a generally things here are different types of atmosphere made by. There are gases, water, vapor, and dust particles. The composition of the atmosphere is not static. Is a changes is according to the time to place. There is a most important. The first here, the gases of the atmosphere. There is the most important. The atmosphere is a mixture of different type of gas, including water, vapor, and dust particles. Nitrogen and oxygen are the two main gases of atmosphere. There is a 99% part of it is made up to these two gas. There is the most important. Nitrogen oxygen is a 99% part of made of these two gas. Another gas like argon, organs, carbon dioxide, hydrogens, neons, helium, etc. From there is a remaining part of atmosphere. There is a detail of different gas of atmosphere. A given table here. Show here table. In this table, the amount of gas in the dry and the air of atmosphere. There is the most important. The main gas here are nitrogen and oxygen. The nitrogen is a 78.1% and oxygen here are 20.9%. There is the most important, and the other secondary gases here. The organs, carbon dioxide, hydrogen, neon, helium, ozone, and another. There is the organs is here 0.9, and the carbon dioxide is 0.03%. Hydrogen here 0.01%. Neons is a 0.0018%, and helium is a 0.005%. Ozone here and there other. There is the most important. There is only for a 0.99, means less than 1. If you understand there is a composition of atmosphere, there is a pie chart here show in the screen. There is a pie chart show of clarity. The nitrogen is a 78.1% and oxygen is a 20%, and the less is a 1% here other gas. There is a most important for a pie chart of composition of atmosphere chart. The next gas has a ozone gas. The amount of ozone gas in the atmosphere is very little. It is a limit to the ozone, the layer, but is very important. It's a protect the living beings to the absorbing their ultraviolet ray of the sun. If there was no ozone gas in the atmosphere, there would be not has been extended to the living beings and plant on the earth's surface. There is a most important here, ozone gas. And next here, the water vapors. There is the most important also. The gas form of water present in the atmosphere is called water vapor. Water vapor present in the atmosphere has made life possible on earth, but vapor is the source of all kind of precipitations. It is a maximum amount in the atmosphere is could be up to the 4%. A maximum amount of water vapor is found in a hot, wet, and the regions, and it is the least amount of is found in the dry regions. Generally, the amount of the water vapor goes on decreasing from a low latitude to the high altitude. There is a most important, and in the same way, its amount goes on decreasing with the increasing altitude. Water vapor reaches in the atmosphere through the evaporations and transpiration. There is a most important here, and evaporations and take place in the ocean, sea, river, pond, and the lake. Will their transpirations take place of from to the plants, trees, and the living beings. There is the most important here, the water vapor rich in the atmosphere through the evaporations, transpirations, and evaporation. There is the most important here. And next here is the dust particles. Dust particles here are generally found in the lower layer of the atmosphere, and these particles are found in the form of sand, smoke, and oceanic salt. Sand particles have an important place in
atmosphere, and this dust particle help in the condensations of the water vapor. During the condensations, as water vapor get condensed in the form of the droplet around these dust particles, and due to this process the cloud are formed or precipitation is made possible. There is a dust particle is the most important here for this condition. And here important of atmosphere, there is important here oxygen is a very important for the living beings, and carbon dioxide is a very useful for the plants. Dust particle present in atmosphere create a suitable condition of the precipitation. That is the most important. The amount of water vapor in the atmosphere goes on changing and directly affect the plant and living things. There is the most important here. There is a changing and directly affected by the plants and living beings. And the next year, ozone protect all kind of life on the earth from to the harmful ultraviolet ray of the sun. The most important here, ozone protect. Ozone is the most important for here. The harmful ultraviolet ray is often the sun on human beings. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण वायुमंडल का संगठन और संरचना। देखिए वायुमंडल का संगठन और संरचना क्या है। वायुमंडल का संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस जैसे जलवाष्प, धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का जो है संगठन स्थिर नहीं है और यह समय और स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि हर जगह का जो है जलवायु हर तरह से होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वायुमंडल का संगठन हर जगह अलग अलग टाइप से होती है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का संगठन स्थिर नहीं है और यह हर समय स्थान अनुसार बदलता ही रहता है। अगर हम बात करें वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें हैं तो इससे हमें साफ पता लग जाएगा कि वायुमंडल के संगठन किस प्रकार हुआ है। यदि बात हम करें वायुमंडल की गैस, तो देखिए जलवाष्प तथा धूल कण सहित वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण भी है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों के रूप में होती है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वायुमंडल के दो प्रमुख गैसों के रूप में माना गया है, जो कि काफ़ी अमाउंट में जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। देखा जाए तो इसका परसेंटेज अगर देखोगे तो हैरान हो जाओगे। 99 जो है % भाग इन्हीं दो गैसों से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी आश्चर्यचकित की बात है कि 99% कम नहीं होता है। कहते हैं शेष भाग जो होते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम आदि गैस पाई जाती है। सिर्फ 1% जो है अदर गैस है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। वायुमंडलीय गैस का वितरण सारणी जो है हम टेबल में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें किसका जो है कितना प्रतिशत है। तो ये आप जान के और भी हैरान हो गए कि कितने गैस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, कौन सा गैस का क्या स्थान है। यहाँ पर जो हमारा आया है वायुमंडल के शुष्क और शुद्ध वायु में गैसों की मात्रा। देखिए यहाँ पर जो है गैसों के हम डिफरेंट मात्राओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि वायुमंडल में जो है इसका कितना प्रतिशत जो है अपना योगदान देता है। सबसे पहली बात अगर हम करें मुख्य गैस की, तो मुख्य गैस के रूप में आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने ही अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो है 78.1% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.9% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है। यानी दोनों गैस मिलाकर देखा जाए तो 99% जो है ये पूरा वायुमंडल में अपना स्थान जो है ऑक्युपाई कर रखी है, यानी घेर रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। और अदर गैस का जो है क्या स्थान है देखते हैं। देखिए जो अदर है यानी जो अतिरिक्त है, अन्य है, गौण है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले आर्गन है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन और अन्य। देखिए इन गैसों का भी बहुत खास महत्व होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रतिशत है बहुत ही कम है। यानी देखा जाए तो सिर्फ 1% के अंतर्गत ही ये सारे गैस आते हैं। अगर आर्गन की बात करें तो 0.9, देखिए आर्गन सबसे ऊपर है क्योंकि 0.9% है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखा जाए तो जो है 0.03% है, और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 0.01% है। नियॉन की बात किया जाए तो 0.0018% है, और जो हीलियम जो है 0.005% है, और ओजोन की जो है सबसे कम मात्रा है यानी 0.00006% है।
तो अन्य गैस के रूप में इसको देखा जा सकता है। कहते हैं ये सारे गैसों का जो प्रतिशत है बहुत ही जो है डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में 2 ही गैसों का जो है अपना प्राधान्य है। यदि इसी बात को अगर हम पाई चार्ट में अगर देखें समझें तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है ये पाई चार्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा देखिए बिल्कुल ही जो है पूरा के पूरा कवर कर लिया है पाई चार्ट को। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नीचे जो है एक ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा जो कि कुछ ही मात्रा को जो है ऑक्यूपाई किया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात होती है कि अन्य गैस जो है सिर्फ 1% के अंतर्गत ही आता है। तो यही बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आती है और इस पाई चार्ट ने तो आपको क्लियर कर दिया होगा कि भाई क्या इनकी अपनी स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ओजोन गैस। देखिए ओजोन गैस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे जो है पैराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाते हैं और ये हमारे लिए जो है हमारे धरती के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। तो इसलिए ओजोन गैस जो है वायुमंडल ओजोन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है और यह ओजोन क्षेत्र में ही सीमित है। लेकिन इसका विशेष महत्व है, ये सूर्य की जो है पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीव जंतु की रक्षा करती है। देखिए ये ओजोन गैस जो है रक्षा के रूप में जो है काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इसी प्रतिशत जो है बहुत ही कम है। कहते हैं पृथ्वी के जीव जंतु की रक्षा करना जो है ओजोन गैस का सबसे प्रथम कार्य है। यदि ओजोन गैस वायुमंडल में न होता तो धरातल पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अस्तित्व ही न होता, क्योंकि अगर ओजोन गैस नहीं होता तो सारे के सारे पैराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पे आती और पृथ्वी को जो है तहस नहस करके रख देता। लेकिन जीवन का अगर संभव हुआ है तो ये ओजोन गैस के कारण ही संभव हुआ है और इसी कारण जो है आज पेड़ पौधे जीव जंतु जो है पृथ्वी पर जो है अपना खुला विचरण कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल वाष्प। देखिए जल वाष्प का क्या महत्व है। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जल के गैसीय स्वरूपों को जल वाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के विद्यमान रहने के कारण ही पृथ्वी पर जो है जीवन संभव हुआ है, यानी जीवाश्म के कारण ही जीवन संभव हुआ है। और जल वाष्प पृथ्वी पर होने वाले सभी प्रकार के जो है वर्षण का स्रोत भी है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा जो है 4% तक हो सकती है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है तथा शुष्क क्षेत्रों में यह सबसे कम मिलती है। सामान्यतः निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की और इसकी मात्रा कम होती चली जाती है और इसी प्रकार ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। वायुमंडल में जो है जलवाष्प जो है वैश्वीकरण तथा वर्ष उत्सर्जन द्वारा पहुँचता है। वैश्वीकरण जो है समुद्री नदियाँ तालाब और झीलों को जो है वर्षन जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु पौधों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कहा जाए तो जलवाष्प जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अपना एक स्थान है वायुमंडल में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धूल कण। देखिए धूल कण का भी अपना एक स्थान इम्पोर्टेंट रखता है। धूल कण अधिकतम जो है वायुमंडल के निचले स्तर में होते हैं और यह कण धूल, धुआं, समुद्री लवण आदि के रूप में भी पाए जा सकते हैं। धूल कणों का जो है वायुमंडल में जो है विशेष अपना महत्व रखता है और ये धूल कण जलवाष्प के संधारण में सहायता भी करता है और संधारण के समय जो है जलवाष्प जल कणों के रूप में इन्हें जो है धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षण संभव हो पाता है। देखिए धूल कण अगर न रहे तो बरसात भी नहीं होगा, बादल भी नहीं बनेगा तो बरसात भी नहीं होगा। तो धूल कण का भी अपने जगह पर बहुत विशेष स्थान होते हैं। कहते हैं धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाते हैं जिससे बादल बनते हैं और बादल बनने से वर्षण संभव हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि धूल कण का भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वायुमंडल में इसका क्या अपना स्थान है। यदि हम बात यहाँ पर करें वायुमंडल का महत्व तो कहा जाए तो वायुमंडल का अपना एक विशेष महत्व है और इसे नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होता है और इसी वजह से पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। देखो नेचर ने जो बहुत चीज़ों को सोच समझ के बनाया है। अगर ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए इम्पोर्टेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों जो है के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं दोनों को जो है तालमेल बनाने के लिए जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो है असमंजस न हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि प्राणी अगर ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो है प्राणी अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो जो है पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे जो है तालमेल सही जो है बने हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से अगर एक भी नष्ट कर दिया जाए बहुत अधिक मात्रा में तो क्या होगा,
ये होगा विनाश का कारण, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे जिस प्रकार से कट रहे हैं, शायद आने वाला समय में सबसे बड़ा जो है इंसानों को ही इसका प्रकोप जो है झेलना पड़ेगा। और इसका कोई अभी एग्जाम्पल भी आ चुका है, और वो बहुत बड़ा दूर नहीं है। कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, जहाँ पर गैसों की जो है भरमार हो गई है, और वहाँ पर जो है जीव जंतु जो है बहुत तड़प रहे हैं। वहाँ पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है कि इंसानों के जीवन जो है संभव, अब वहाँ पर रहना भी संभव नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्रकोप आज जो है दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे जितना हो सके लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से ही हम जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तालमेल को बैठा सकते हैं। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जो है धूल कण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं, क्योंकि धूल कण जो होते हैं वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। अगर धूल कण न हो तो वर्षा होना भी संभव नहीं होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती सदैव रहती है, और प्रत्यक्ष रूप से जो है पादप और जीव जगत को काफ़ी प्रभावित भी करती रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। ओजोन सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणों से सभी प्रकार के जीवन की रक्षा भी करती है। तो यही बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस बात को जो है इम्पोर्टेंट में ही रखा जाना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हियर? द एटमॉस्फेयर इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ. It is surround their earth from all the sides. Generally, it is extend up to about 1,600 kilometer from to the Earth's surface, and 97% of the total amount of weight of the atmosphere is a limit up to the height of about 30 kilometer. There is a most important. The atmosphere can be divided into the 5 layers according to the diversity of temperature and density. There is the most important. The first layer, troposphere. Second is a stratosphere, and the third is a mesosphere, and fourth is a ionosphere, and fifth is the exosphere. There is structure of the atmosphere is a 5 type. There is according to the temperature and density. Here show the diagram. There is a exchange of density of temperature here. Exosphere is the first of all, ionosphere and the mesosphere show here. The 400 kilometer is the exosphere, and the less than the 80 kilometer here ionosphere, and there is the most important, and there is a down for down, and there is a come to there is the mesosphere and stratosphere and the troposphere pulse. There is the most important structure of the sphere on this diagram. The first here, troposphere. Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. This is the lowest layer of the atmosphere. The height of this layer is about 80 kilometers on the equator and the 8 kilometer on the poles. The main reason of higher height at the equator is due to the presence of the hot convections current that is push the gas upward. There is a most important. This is the most important layer of the atmosphere because all kind of weather change take place only in this layer. There is a most important here. This is the most important here because the all kind of weather change the place only in this layer, and due to this change or development of living world take place on the earth, and the air never to remain static in the layer. Therefore, this layer is called changing sphere or troposphere. That is the most important. The environmental temperature decrease with the increasing height of the atmosphere. It is a decreasing at the rate of the 1 Celsius at the height of the 165 meter, and this is called to the normal Laplace rate. There is the most important here. The upper limit of the troposphere is called troposphere pulse, and this is a transitional zone. And in this zone, the characteristics of the both the troposphere and the ionosphere are found here. Stratosphere, there is the most important here. This layer is above to the troposphere, and this layer is spread up to the height of 50 kilometers from the Earth's surface. It is an average 10 to 40 kilometers. There is the most important. The temperature remains to almost the same in the lower part of this layer up to their height of the 20 kilometers. After this temperature increasing slowly with the increasing in the height.
The temperature increase due to the presence of the ozone gas in the upper part of this layer. The wealth related to incidents do not take place in this layer, and the air is below to horizontal here. Therefore, this layer is a considered idea for flying of aircraft. Our next layer is the mesosphere. The mesosphere, it is a third layer of the atmosphere, spreading over to a stratosphere. They spread up to the height of 80 kilometers from the surface of the earth, and it is extent is 30 kilometers. The temperature goes on decreasing and drop up to the minus 100 Celsius. The meteors are falling star occur on this layer. There is a most important. The next layer, ionosphere. Ionosphere is the most important layer. This is the fourth layer of atmosphere. It is localized about to the mesosphere, and this layer is spread up to the height of 400 kilometers from the surface of Earth. The wealth of this layer is about 3 kilometers. The temperature start to increasing again with the increasing height in this layer. An electrically charge is a current flow in this air and the sphere, and radio wave are the reflected back on the earth from this sphere, and due to this radio broadcasting has become possible. Their ionosphere is the reason for the radio broadcasting on possible. The next is here the exosphere. The exosphere is this last layer of the atmosphere, localized above to the ionosphere and extend to the behind 400 kilometers above the earth. The gases are very present in this sphere due to lack of gravitation force, and therefore the density of the air is very less here. The most important fact here, change of weather take place only in the troposphere, and change of weather condition do not take a pulses in the stratosphere, and this is the ideal layer of the flying air plan. This aeroplane is the most important flying in the air or stratosphere, and ions are found to the abundance in the ionosphere. Ionosphere is reflect back the radio wave to the earth and make to the possible for the communication system. The communication system is a possible here is a present of ionosphere. Ionosphere is a reflect back the radio wave to the earth make a possible for a communication, and density air is the list of the exosphere. There is the most important point here. A density of air is the least is exosphere. Here is the most important 3 point here arrive. There is a flying airplane is a possible because the poles to the stratosphere, and possible for the communication system. There is a layer of present to ionosphere, and density of air is the list of the exosphere. There is the most important point, note down for your notebook. हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। वायुमंडल पृथ्वी की अभिन्न अंग है और यह पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। सामान्यतः यह धरातल के लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, और वायुमंडल कुल भाग की जो मात्रा का 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तापमान और घनत्व की विविधताओं के आधार पर वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा जा सकता है, यानी 5 परत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं और वही मंडल कहते हैं। ये कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये 5 परतें, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो या आयन मंडल हो या वही मंडल हो। ये वायुमंडल की संरचनाओं को जो है बहुत ही विस्तृत और जो है खासियत से भरा हुआ बनाता है। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक में अगर देखना चाहें तो आपको देख सकते हो कि 400 किलोमीटर पर जो है वही मंडल जो है अपना स्थान ग्रहण किए हुए शीर्ष पे बैठा हुआ है। उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, और उसके नीचे जो है क्षोभ मंडल सीमाएं दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है रेडियोधर्मी तरंग जो है परिवर्तन का कार्य करता है, जिसके विषय में जो है विशेषताओं को हम आगे जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करेंगे।
यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल की जो है क्या विशेषताएं हैं, क्षोभ मंडल की विशेषताओं को जो है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखा जाए तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में होती है, यानी वायुमंडल के सबसे नीचे परत जो है वायुमंडल के सबसे निचले परत के अंतर्गत आता है। और इस परत की ऊंचाई विषुवत पर जो है वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर ही है। ऊंचाई की विभिन्नताओं का मुख्य कारण जो है विविध का तेज संवहनी धाराओं का चलना, जो धरातल की ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। उसके पश्चात जो है तीसरा वायुमंडल की यह सबसे जो है महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसी परत में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण जो है पृथ्वी पर जीव जगत की उत्पत्ति एवं विकास होता है। इस भाग में वायु जो है कभी शांत नहीं रहती है और इसलिए इस मंडल को जो है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में कमी होती चली जाती है तथा प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है औसतन 1 सेल्सियस तापमान घटता जाता है। इससे ही जो है सामान्य ताप हर्ष दर कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आता है। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं, तो यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें जो है क्षोभ मंडल की जो है समताप मंडल की मिली जुली विशेषताएं पाई जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है हमारा समताप मंडल। देखिए समताप मंडल क्या है और इसकी क्या विशेषता है। देखिए यह जो है क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है, यानी यह क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है और इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर जो है धरातल से है और कि इसकी जो औसतन मोटाई लगभग 40 किलोमीटर के समान मानी जा सकती है, जो कि इसकी इम्पोर्टेंट को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं इसी परत के निचले भाग में जो है 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान जो है लगभग सामान्य रहता है और इसके बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और इस परत के ऊपर भाग में ओजोन के होने के कारण ही तापमान सदैव बढ़ता रहता है। इस मंडल जो है में किसी प्रकार की जो है मौसम की घटना नहीं घटती है और यह वायु को क्षैतिज चलाती रहती है और इसी कारण यह परत जो है वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है, यानी जो एरोप्लेन चलती है इसी मंडल में चलती है और ये वायुमंडल में जो है वायुयानों को उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है मंडल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल की क्या विशेषता है। समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल की तीसरी परत का जो है विस्तार है और इसे जो है मध्य मंडल ही कहते हैं। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 80 किलोमीटर तक मापी जाती है और इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर के सामान्य है। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। कहते हैं अगर हम तीसरी बात करें तो इस मंडल में तापमान पुण्य कम होने लगता है, यानी यहाँ से जो है तापमान बहुत कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तापमान 16 सेल्सियस से -100 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, यानी जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे यहाँ पर जो है तापमान कम होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आयन मंडल। तो ये आयन मंडल की भी अपनी एक विशेषता है और इस विशेषता से जो है हम जो है अनभिक्त नहीं रहना चाहते। कहते हैं आयन मंडल जो है यह वायुमंडल की चौथी परत के रूप में है और यह मध्य मंडल के जो है ऊपर स्थित होती है। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 400 किलोमीटर तक है और इस मंडल की मोटाई लगभग 300 किलोमीटर आंकी गई है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ पुण्य बढ़ता ही चला जाता है और इस मंडल में वायु में जो है विद्युत अवशोषित तरंगें प्रभावित होती रहती है और रेडियो तरंग इसी मंडल से जो है परिवर्तित होकर पुनः जो है पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे हम रेडियो प्रसारण संभव होता है। आपको पता है कि रेडियो जो है प्रसारण इन्हीं कारणों से होती है कि इसकी तरंग जो है आपस ये रिटर्न कर देती है और ये सब जो है आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारे समय वायुमंडल है। वायुमंडल आयन मंडल के ऊपर स्थित जो है परत वायुमंडल के अंतिम परत के रूप में होती है और इस मंडल में जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैस अति विरल हो जाते हैं, अतः यहाँ वायु का घनत्व बहुत ही कम रहती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यदि इम्पोर्टेंट की बात हम करें तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही जो है मौसम की सभी घटनाएं घटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल के कारण ही मौसम की सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती है और समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यहाँ पर समताप मंडल में कोई भी मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यह वायुयानों को उड़ानों के लिए एक आदर्श परत के रूप में देखी जा सकती है, यानी वायुयानों की जो उड़ानें हैं इसी परत में की जाती है। जो है आयन मंडल में आयन की प्रधानता आयन रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परिवर्तित करके जो है संचार व्यवस्थाओं को संभव बनाती है। देखिए यहाँ कई मानने में जो है यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारा जो है किस लेयर में जो है उड़ाने को जो है उड़ाने के लिए आदर्श परत के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा कि समताप मंडल है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के लिए किस लिए उपयोगी होता है, क्या उपयोग है इसका, या रेडियो तरंगे जो है किस परत में जो है पाई जाती है और इसका क्या महत्व है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आयन मंडल में आयन की प्रधानता होती है और आपको पता ही है कि कोई भी रेडियो तरंगे जो होती है वो जो है आपस यहाँ पर परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से जो है हमें सभी दूर संचार में जो है उपयोग किया जाता है, यानी जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसी कारण जो है कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। शायद ये बात आपको पहले पता नहीं था, अब जो है आपको पता हो गया होगा। भाई मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ये काफ़ी बातें जो यहाँ पर थी इम्पोर्टेंट थी। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डूइंग हेयर अ साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। द साइकिल ऑफ द मेन gas is found in the atmosphere is given below: the carbon cycle, oxygen cycle and carbon dioxide cycle. There is the most important for the geographical reason. There is the first here carbon cycle. The element of the carbon is present in the atmosphere in form of the carbon dioxide. The source of carbon from all living beings is the atmosphere. That is the most important. The green plants receive a carbon dioxide from to the atmosphere, which is used for making food with the help of the sunlight. This is called to the photosynthesis. By the process, the plant create of carbohydrate in the form of food. The carbohydrate thus produced by the plants are used as the food by all living beings. The carbon dioxide get dissolved in the water bodies and get collected in their form of limbs of earth. After this, the dissolutions of limestone, carbon dioxide again reaches in the atmosphere. This process is called carbonylation. Carbonylation in this is the way of carbon dioxide goes on the moving between to the atmosphere and water body of earth. There is the most important the carbonizations. And carbon dioxide produced by breathing of plant, animal, and degradations of plant animals, and by burning fossil fuel like coal, petroleum, and natural gas, again return to back to the atmosphere. In this way, the process of receiving of carbon dioxide from the atmosphere and going back to the its form of the surface of the earth keep on the going continuously. It keeps the balance between the carbon and is a biosphere. Here show the most important diagram of carbon cycle. There is a carbon cycle here. A sun photosynthesis producer a plant tree, and there is a goes based to the consumers and decomposer, and the respiration here atmospheric carbon dioxide and goes to the producer plant and tree. There is a cycle, and the other cycle here is goes back to the producer a plant tree as goes to the soil and coal oil and combination, and there is go to be a atmospheric carbon dioxide. There is the most important carbon dioxide cycle. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वायुमंडलीय गैसों की चक्रीय प्रक्रिया, यानी वायुमंडल की गैस की चक्रीय प्रक्रिया किस बेस पे आधारित होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाले प्रमुख गैस का चक्रण जो है नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, यानी कार्बन चक्र। दूसरा आता है ऑक्सीजन चक्र। तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र,
यानी कार्बन चक्र के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। देखिए ये कई मायने में जो है तीनों के तीनों गैस जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है वायुमंडल में। तो चलिए देखते हैं पहला चक्र जो है कार्बन जो है चक्र क्या है। जैसा कि हमारा कार्बन चक्र आया है, देखिए कार्बन चक्र की विशेषताओं में क्या रखा है, कहते हैं बहुत इसकी विशेषताओं में जाते हैं। तो इसके जो है विशेषताओं को हम क्या दिया गया है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन तत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विद्यमान होता है। कहते हैं समस्त जीवों के कार्बन का एक स्रोत जो है वायुमंडल ही माना जाता है और यहाँ से जो है हर एक जीव जो है लाभांतरित भी होता है। हरे पौधे जो है पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन निर्माण हेतु करते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के रूप में तैयार करते हैं और इसके द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के लिए करते हैं। पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जल भंडारों में जो है घुल जाती है और चूने के जमाव के रूप में इकट्ठी भी हो जाती है। चूने के पत्थर के जो है अपघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल पुण्य पहुंच जाती है और इस प्रक्रिया को जो है कार्बनीकरण कहते हैं, यानी कार्बनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो है कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार जो है वायुमंडल और पृथ्वी के जो है जल भंडारों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता ही रहता है। यदि हम करें आगे, जैसे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के श्वसन के द्वारा पौधे और जीव जंतुओं को जो है अपघटकों द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जो है जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में आपस चली जाती है। इस प्रकार जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और धरातल के पुण्य वायुमंडल में आपस जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही कार्बन एवं जैव मंडल के बीच संतुलन बना रहता है। यानी हर एक गैस का जो है अपना वायुमंडल में अपना एक विशेष स्थान रखता है। देखिए हमारे समक्ष जो आया है कार्बन चक्र, जो कि बहुत काफ़ी आसान है, इसका बनाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायग्राम में जो डायग्राम है यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए बहुत आसान है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण आपने बनाना है जिसमें सन को दर्शाना है। उसके बाद उत्पादक जो है पेड़ पौधों को बनाना है और उपभोक्ता जो है हमें स्वयं बनना है और घटक के रूप में जो है कीड़े मकोड़े होंगे। तो इस प्रकार जो है ये वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फिर से चली जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया दोहराया जाएगा। दूसरी तरफ बात अगर करें हम, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। उत्पादक कहाँ से करेंगे? मिट्टी से करेंगे। अब मिट्टी में क्या होगा? कोयला, तेल आदि होंगे, उसकी दहन की जाएगी, फिर श्वसन में जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में प्रवेश करेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान जो है कार्बन चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, इससे आसान कहीं आपको मिल भी नहीं सकता। तो our next topic is the oxygen cycle. The oxygen cycle also important here. The amount of the oxygen in the atmosphere is about 21%, and all living beings use oxygen present in the atmosphere for a breathing. Their oxygen is the most important for a living organism. And for the burning of the fuel like a boats, coal, gas, etc., oxygen stimulates and the carbon dioxide gas produced by their burning. That is the most important here. The main source of oxygen is the atmosphere is a plant and trees. The higher the number of trees and plants, their ability of the oxygen will be more. There is the most important, and oxygen produced through the photosynthesis by the green plant goes back to the atmosphere, and in this way a process oxygen cycle goes on continuously. Here show the most important oxygen cycle. There is a very easy is a diagram here, oxygen cycle. There is a very simple and very useful for you. There is here a sun produce a solar energy by their photosynthesis cell. The plant and trees their use of solar energy on a photosynthesis processing and goes waste to produce here oxygen या glucose. The plant and trees are produce oxygen or glucose. There is a goes back to the heterotrophic cells, and the heterotrophic cells use and produce here carbon dioxide or water, and this goes back to the plant of photosynthesis cell processing repeating. There is a very easy oxygen cycle. Note down your notebook. There is a most important and simple diagram for you.
अगला टॉपिक तो दोस्तों हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, ऑक्सीजन चक्र। देखिए ऑक्सीजन चक्र क्या है और इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में लगभग 21% है और यह समस्त जीव जंतु और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यानी आपको पता है अगर इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के सभी जो होते हैं ऑक्सीजन जो है उपयोग करते हैं। इवन कि कुछ पौधे को अगर देखा जाए तो वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन हर जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ। कहते हैं आप ये भी जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए कि आपके आसपास ऐसा कौन पेड़ पौधा है जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जल्दी देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताता है। अपने नाम के साथ जो है आप इसको जो है मुझे कमेंट जरूर करना, अपना नाम लिख के बताना है कौन सा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही काफ़ी आवश्यक है और इसके जलने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तभी तो आपको पता है कि लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम गैस हो, सबके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही है और ये कई मायने में जो लोगों के लिए खतरनाक भी सिद्ध होता है। कहते हैं वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शायद ये संभव ही नहीं है कि ऑक्सीजन उत्पन्न हो। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए पेड़ पौधे जितने हो सके दोस्तों लगाना चाहिए और पेड़ पौधों को जो है बचाने में आप अपना जो है काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हो। अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनको मना कीजिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे आपके लिए जो है अमृत समान है, जीवन देने वाली जो है ऑक्सीजन आपको देती है। तो पेड़ पौधे को बचाना आपका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में वापस चली जाती है और इसी प्रकार जो है ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको डायग्रामेटिक समझना और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में क्या दर्शाया गया है। देखिए डायग्राम जो है बहुत आसान और बहुत ही इजी है। कहते हैं दोस्तों बहुत अधिक लंबा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं लेकिन अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं और त्रिपाण सिटी सेंटर इसी बात पे सदैव ही आपको जो है जागरूक करने की कोशिश करता है कि दोस्तों अपना सिलेबस को आप पूरा कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना सिलेबस से अधिक जान लेना आपके लिए सही भी नहीं रहेगा और आप जान भी नहीं पाओगे। कहते हैं एक पॉइंट अगर आप अधिक जान लेते हो तो इसका मतलब थोड़ी कि सारा किताब आपको जो है अच्छे से आ जाता है। इसलिए हर एक टॉपिक को जो है आपको अपना सिलेबस को देखिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि कोई भी बोर्ड जो होता है, कोई भी सिलेबस बनाता है तो वो बच्चे को जो है नज़रिया को देख के, बच्चों की समझ देख के बनाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल है, जहाँ जो कि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही आसान है। सोलर एनर्जी आपको दिख रहा होगा जिससे फोटोसिंथेसिस जो है सेल्स करती है, यानी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं या ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं। ये जो होता है हेटेरोफिलिक सेल्स के अंदर चला जाता है और इससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर जो है प्राप्त होती है और ये दोबारा जो है फोटोसिंथेटिक सेल में चला जाता है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। इतना आसान आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं अगर ये बना देते हो तो एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि ये पर्याप्त है। कहते हैं पर्याप्त होने का मतलब यही होता है कि वो पुण्य है और ज़रूरी भी है। हमें अधिक क्या हमें फालतू में लेना है, हमें जो चीज़ आसान है, सही है, हमें उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही सही है। The next important topic here are nitrogen cycle. Nitrogen cycle is the most important here. The nitrogen important element of the life. The amount of nitrogen gas is the atmosphere is a 78%. There is a maximum amount of present of the our atmosphere is a 98%. The main source of nitrogen are the nitrate present in a soil. From the atmosphere, nitrogen enter into the bio component through the biologically is an industry process. Nitrogen compound forming to the plant are transferred to their animal through the food chain, and the process of transformation of nitrogen gas of the
atmosphere into the nitrogen component in is called nitrogen fixation. Bacteria as a decomposed derived is a plant dead animal. It is a produce a nitrogen gas and which goes to the back into the atmosphere. In this way, the cycle of nitrogen gas is completed. Here show the diagram. Here show the most important diagram, nitrogen cycle. You know that there is a very easy cycle. Here, first of all, here was to the clean soil storage pool and is a nitrate. And the nitrate has come to atmosphere storage pool of the nitrogen gas. There is a exchange to the each other. Here, atmospheric storage pool is a nitrogen gas to goes a lighting fixation. And here soil storage pool interact, and here is a come to the other side nitrogen fixation by the organism, and there is a was to clean, and also refer goes to the uptake by the autotrophic plant, and the autotrophic plant here after the death. The death is the transfer to the heterotrophic animal, and after death is the decompose the soil and bacteria, algae, and this goes to the nitrogen gas. There is the dead plant and animal. There is the most important source of nitrogen. There is a most important nitrogen cycle, and the very easy. Note down your notebook for the exam view. So here is the main source of carbon is carbon dioxide gas found in the atmosphere. The main source of oxygen is the atmosphere are plant and trees. Oxygen is the use of breathing and for a burning of fuel. Nitrogen is a very strongly for a life on the earth. The main source of nitrogen is the plant or nitrate present in the this soil. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र जो कि बहुत ही आसान और जो है विस्तृत तरीका से यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन प्रत्येक जीवन का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, जिसका हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट होते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जैव घटकों में प्रवेश कर जाती है। पौधों में ये नाइट्रोजन जो है यौगिक खाद्य श्रृंखला आहार द्वारा जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है। वायुमंडल का जो है नाइट्रोजन गैस के जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके विषय में हमने बात भी किया और जाना भी। यानी वायुमंडल नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों के सूखने और जीव जंतुओं के मरने पर जो है जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है और इससे नाइट्रोजन गैस बनती है, जो फिर से वायुमंडल में वापस चली जाती है और इस तरह जो है नाइट्रोजन गैस कि चक्रीय पूरा हो जाता है। यानी इंसान या जीव जंतु या पेड़ पौधे मरते हैं तो आपको पता है ये धरती में ही किसी न किसी रूप में चले जाते हैं, जो कि धरती को नाइट्रोजन दोबारा से मिल जाती है। तो ये जो है नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आता है। इसी बात को अगर डायग्रामेटिक आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान डायग्राम आपके समक्ष है, जिसको आपको नोट करना चाहिए और एग्ज़ाम में जो है अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए, नाइट्रोजन गैस के जो है वायुमंडल संचलन पुल के रूप में। अब ये कैसे होगा? ये होगा प्रकाश स्थिरीकरण के कारण, और दूसरी तरफ से जाएगा जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, और ये मृदा में नाइट्रोजन संचलन जो है चला जाएगा या महासागरों में प्रक्षेपण हो जाएगा। कहते हैं अगर हम ये स्वयं पोषी पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, अगर वो मृत्यु हो जाते हैं, ये मृत्यु की घटना होगी जहाँ पर विषमपोषी प्राणी स्थानांतरित होगी और मृत्यु के पश्चात जो होगा अपघटन मृदा जीवाणु शैवाल के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है और फिर से नाइट्रोजन में चला जाता है। यानी इसका अगर हम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो आपको पता है कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो उसमें जो है नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है और ये जो है पृथ्वी में ही दबा दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि किसान जो होते हैं कृषि करने से पहले कोई हरा पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लगाते हैं, और आपको पता है सबसे अधिक उपयोगी किसानों के लिए होता है तो वो है दलीदार पौधे, जो दालें होते हैं, फलिये वाले पौधे। कहते हैं फलिया वाले पौधे की जड़ों में जो है नाइट्रोजन वेक्टर यानी नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोबैक्टर नाम की
जो है बैक्टीरिया पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए पर्याप्त होता है। तो जो किसान समझदार हैं, जो काफ़ी अच्छा कृषि करना चाहते हैं, वो कभी भी जो है कोई दूसरा फसल लगाने से पहले जो है वो डलीदार पौधे ज़रूर लगाते हैं। या क्या करते हैं, कोई भी हरा पौधा लगा देते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन होती है और उस पर जो है हल चला के जो है उस पर दोबारा कृषि करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे गलने से भी नाइट्रोजन का जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक बात होती है। तो ये चक्र भी उन्हीं बातों के ओर इशारा कर रहा है। यदि कुछ बातों पर हम ध्यान दें तो ये बात हमें साफ हो गया है। कार्बन का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल में पाई जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे होते हैं और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है सांस लेने और ईंधन जलाने में किया जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है और ये पौधों में नाइट्रोजन का जो है मुख्य स्रोत के रूप में मुद्रा में उपस्थित नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था हमारा ये टॉपिक था जिसके बारे में हम कर रहे थे, और चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण था जो कि अब समाप्त हो जाती है।